ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങളായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും 7 മണി മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആരാധനയിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കർത്താവ് അവസരം കൊടുത്തു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ തിരുവചന സന്ദേശം ശ്രവിപ്പാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് പഴയതും പുതിയതുമായിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. ലോകം മുഴുവനും ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കുവാനോ തമ്മിൽ കാണുവാനോ കഴിയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ ഇത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ എത്തുവാനും അതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകുവാനും ആത്മീയ ഉന്നതിയും പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള സഹകരണവും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ സായം വേളയിലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ സായം വേളയിലും അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ, ദൈവവചനത്തിൽ ചിന്തകൾ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിനും ഈ സന്ധ്യയെങ്കിലും ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിജോ ജോയ് IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദിൽസാദ് ഗാർഡൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും വേദ അധ്യാപകനുമായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഈ രാത്രിയിലെ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തന്നോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस शनिवार के सायंकाल आपकी उपस्थिति वैसे एक प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए हम सबको आपने मौका दिया है। IPC दिल्ली स्टेट के द्वारा आयोजित किया हुआ इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए तैयारी के साथ बैठा हुआ हर एक विश्वासी गण पासमानों को आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। गीतों के द्वारा स्तुति और आराधना करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। हमारा प्रार्थना को सुन ले प्यारे प्रभु जी। वचन के घोषणा करने के लिए अपने अभिषक्त दास लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज सुनने वाला आपका वचन हमारा जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए, शुरू से लेकर प्रभु जी हालेलुया हमें आखिरी समय तक पवित्र आत्मा हमारा बीच में मंडलाते रहे। प्रभु जी आपका उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें सहायता करे। आदर महिमा दलाल आपको ही देते हुए हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ജിജോ ജോയ്. കർത്താവ് ധാരാളം നിങ്ങളെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ശുശ്രൂഷയും ദൈവസഭയെയും കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇന്ന് ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുവാനുമായി ബ്ലസൻ വർഗീസ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് നമ്മളോടുകൂടിയുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷിപ്പ് ലീഡറോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം ബ്ലസനെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു. अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर समय को प्रभु ने हमें दिया कि आप सबके साथ मिलकर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। विशेषकर साथ ही साथ मैं IPC दिल्ली स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस समय आपके साथ मिलकर आराधना करने का ये अवसर हमें दिया। ये सब मिलकर
हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। कुछ क्षण अपने आप को भूलकर हम उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में अपने आप को हम सौंप दे और उससे कहें, खुदा तेरी आराधना और तेरी स्तुति हम गाते हैं। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा राजा है। आप जहाँ कहीं भी हो, मैं सबसे चाहूँगा कि आपका ध्यान इस समय परमेश्वर की आराधना में हो। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, वही हमारा राजा है। Yeshua, we worship you, Lord Jesus. यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, मिलकर यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। स्तुति करूं मैं, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर की योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर की योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मिलकर यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा तू मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मैं कर एक और बार, यीशु राजा, यीशु राजा
मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशुवे तू ही मेरा राजा है खुदा, तू ही मेरा प्रभु है। मिलकर उसकी आराधना करें, मिलकर उससे कहे यीशु तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा प्रभु है। हमारे जीवन में तू ही खुदा है, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तेरी आराधना हम करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज जब उसकी आराधना हम मिलकर करते हैं, उससे कहे यीशु तू बढ़े और मैं घट जाऊं, मेरे जीवन से सारी महिमा सिर्फ तुझको मिले। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे यदि कोई नाम आराधना की योग्य है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। आज अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उससे कहें यीशु तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से सारी महिमा सारा आदर तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मिलकर तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम यीशु, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े तुझे मिले। मिलकर एक और बात, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। से महिमा तुझे मिले। यीशुवे तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े सिर्फ और सिर्फ मैं घटूं। हालेलुया, मेरे जीवन से महिमा तुझे। राजा धीराज तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे
जीवन से महिमा तुझे मिले यीशुए, तू बढ़े हालेलुया मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशुए यीशुए। आइए मुंह खोलकर उसकी आराधना करें, सब अपने तरीके में अपने शब्दों से उस परमेश्वर की आराधना करें। वो जो आराधना के योग्य परमेश्वर है उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, मुंह खोलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उससे कहें यीशु तू बढ़े और मैं घट जाऊं। प्रभु सारा आदर और सारी महिमा हम तुझको देते हैं खुदा। जिन जिनको अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर ने दिया, इस समय मिलकर अन्य भाषाओं में उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो आज हमारे बीच में है, उसकी आराधना करें, उससे कहे यीशु तू बढ़ जाए और मैं घटूं। हालेलुया यीशुए, we worship you Lord, oh Lord we worship you, oh राराबाशा तेरे आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं, oh राराबाशा तेरे Lord we worship you, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु तू बढ़े बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले, तू बढ़े हालेलुया मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय, तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। सारा आदर और सारी महिमा तुझको मिले प्रभु। हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु तू बढ़ जाए और मैं घटूं, मेरे जीवन से सारा आदर और सारी महिमा तुझे मिले। अपने हाथों को उठाकर हम तुझसे कहते हैं खुदा, हमारे जीवन से यदि आदर और महिमा किसी को मिले तो वो यीशु सिर्फ तुझे ही मिलने पाए, मनुष्यों को नहीं, हम जिन पर आसरा रखते हैं उन पर नहीं खुदा, पर तो सिर्फ और सिर्फ उस जीवते परमेश्वर को सारा आदर और महिमा हम देते हैं।
तेरी आराधना मिलकर हम करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। रोजी तूने प्रभु तेरी आराधना करने का एक और अवसर हमें दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक और बार मिलकर हम तुझसे कहते हैं, सारी आराधना के योग्य परमेश्वर सिर्फ तू ही है, तू ही है खुदा, तू ही है। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती क्रिस्ट यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. പ്രിയ പതിലിനോടുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരുണത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അനേക വർഷമായി കർത്താവിന്റെ വേലിയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സഭയുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡറായി, മാത്രമല്ല അനേകായിടങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുവാനൊക്കെ ബ്ലസ്സിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പ്രിയ പൈതലിനെ കർത്താവ് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് തനിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അതിൽ കൂടെ ഒരു സന്ദേശം ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതിനായി ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് IPC ജനപുരി ഷാലോം ചർച്ചിന്റെ ഹിന്ദി വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പക്ഷേ വിജയപാൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്. തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के दास ने मुझे दिए और कीमती समय, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं भजन संहिता 16 में पढ़ने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी भर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनको लहू लुभाने तपावन नहीं तपाऊंगा, उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ये भजन संहिता जो 16 में पढ़ा है, ये भजन संहिता 16 के द्वारा कुछ ये वचन से मन करना चाह रहा हूँ। प्रभु जरूर हमें आशीष करेगा। तो इसमें लिखा है 16 के 7 में लिखा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दाऊद परमेश्वर का भक्त है, और दाऊद को परमेश्वर यहोवा ने पीछे अगर हम देखते हैं तो दाऊद अपना पिता ईसे के भेड़ बकरी को चढ़ाता था, और जिंदा परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र दाऊद को चुन करके उसका अभिषेक किया, इस्राएल देश का उसका राजा बनाया, और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष किया है। वही परमेश्वर का दास या दाऊद राजा लिखता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मेरे प्रिय भाई, प्रभु के दासों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव और दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानी आया, लेकिन ऐसा परिस्थिति में कभी भी वो पीछे नहीं हटा। वो दिन प्रतिदिन प्रभु की दया से वो प्रभु में आगे बढ़ता ही चला गया, क्योंकि हालेलुया वो किसी पहाड़ को देख कर नहीं, किसी राजा को देख करके नहीं, किसी प्रेषण मनुष्य को देख करके नहीं, किसी राजा को देख करके नहीं, वो राजाओं के राजा को देख करके वो प्रभु की दया से आगे बढ़ता चला गया। तब परमेश्वर ने
दाऊद को बहुतायत से आशीष किया है, ठीक उसी तरह मेरे प्रभु के दासों भाइयों मुझको भी आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। इसलिए हमें भी हमेशा प्रभु को सम्मुख हमें रहना है, तो प्रभु जरूर हमें इतना दुख से, कष्ट से, मुसीबत से और ये महारोग से भी और विपत्तियों से भी परमेश्वर यहोवा बचाएगा। वो बचाने वाला परमेश्वर जिंदा है, उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। दूसरा यहाँ पर लिखा है और वह इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। दूसरा यह कि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ रहता है। दाऊद बड़े हियाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ वो बताता है कि परमेश्वर यह मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं हर कभी न डगमगाऊंगा। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी परेशानी आए, लेकिन मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। ठीक उसी तरह मेरे भाई, प्रभु के भक्त हो, प्रभु के दास हो, कितने भी परेशानी समस्या आए, अपने परमेश्वर यहोवा के दाहिने हाथ रहो, वो परमेश्वर यहोवा संभालेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु संभालती है, उससे भी बढ़ करके मेरा परमेश्वर यहोवा संभालने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं, वो कभी भी नष्ट होने नहीं देगा। वो जिंदा परमेश्वर यहोवा वो संभाल के रखेगा, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करना है। और नीचे लिखा है क्योंकि अरे तू मेरे प्राण को कभी भी हर ना छोड़ेगा। दो लोक में वचन में लिखा है मेरे क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। परमेश्वर से जो रेगुलर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की जो महिमा करते हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उन भक्तों को, उन पवित्र जनों को कभी भी उनको हर सड़ने नहीं देता है। दाऊद के जीवन में थोड़ा दुख आया, बीमारी आया, कष्ट आया, लेकिन दाऊद दुख के समय, बीमारी के समय में घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना किया। परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को सड़ने नहीं दिया। ठीक वही परमेश्वर यहोवा आज भी है। अगर मेरे भाई हो, प्रभु के दास हो, भक्त हो, अगर हमारे जीवन कुछ बीमारी है, कुछ रोग है, तो आज परमेश्वर यहोवा चंगा करेगा। आज परमेश्वर यहोवा ठीक करेगा, हमारे घावों को ठीक करेगा, हमारी परेशानी को ठीक करेगा, हमारी समस्या को हल करेगा। इसलिए बड़े परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। और नीचे लिखा है सबसे लास्ट में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख संवरदा बना रहता है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के हर दाहिने हाथ में सुख संवरदा बना रहता है। हमारा परमेश्वर यहोवा का हाथ हर दुख का हाथ नहीं है, हमारे परमेश्वर यहोवा का हाथ सुख का हाथ है। उसके हाथ में सुख संवरदा बना रहता है। जो भी कोई उसके शरण में आता है, जो भी कोई उसके वचन में रहता है, जो भी कोई उसकी संगति में चलता है, परमेश्वर यहोवा अपने सुख में, धर्म में हाथ में, अपने सुख के हाथ में उनको संभाल के रखता है। ठीक उसी तरह मुझको भी और आपको भी परमेश्वर यहोवा ने इतना दुख के समय, मुसीबत के समय, कष्ट के समय में परमेश्वर यहोवा ने अपने हर सुख के हाथ में हमें संभाल के रखा है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन बच्चों, प्रभु जरूर हमें आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। ये वचन के द्वारा आपको प्रभु सबको आशीष करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देव प्रभु के दास का कीमती वचन सुनाने के लिए प्रभु के दास को मैं धन्यवाद करता हूँ, और ऐसा प्रभु के भक्तों को, दासों को, सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर विजय पाल। उनके द्वारा अच्छा एक वचन संहिता पढ़कर अच्छा एक संदेश प्रभु का दास ने बताया। मैं विश्वास करता हूं आप सभी को आशीष का कारण बना। प्रभु का दास को और प्रभु आशीष करे, सेवकाई में और प्रभु इस्तेमाल करे। और आगे बिचवाई का प्रार्थना का समय है, अलग अलग विषय के लिए, एपीसी दिल्ली स्टेट और सारे दुनिया के लिए इस महाव्याधि का प्रयास में जो लोग जा रहे हैं, उनका छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हम बिछुआई का प्रार्थना अभी करेंगे। अभी प्रार्थना लीड करने के लिए हमारे साथ है पास्टर जेकब मैथ्यू फैमिली, हमारे साथ है आईपीसी हर्षविहार चर्च का सेवकाई करता है, और प्रभु का दास उनके परिवार के साथ है। आज रात्रि हम बिछुआई का प्रार्थना में जाए। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक और बात प्रभु की चरणों में बैठकर प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए
प्रार्थना करने के लिए आपने दिया वो सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने पिछले पूरे हफ्ते, पिछले पूरे 1 महीने प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु जी। आपने किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने किया हुआ हर एक उपकारों को याद करके प्रभु के धन्यवाद चढ़ाने के लिए हम सबको आप सहायता करने पिता परमेश्वर। जितने लोग आपके चरणों में बैठा है सभी का आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। यीशु मसीह के लिए गुस्से हमें धोकर शुद्ध करना है पिता परमेश्वर। यीशु का नाम हमारी प्राण की रक्षा है, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारा IPC दिल्ली स्टेट के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हमारे दिल्ली शहर में जितना पास्टर लोग हैं उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे हर एक कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में हमारे जीवन में आने वाला हर एक बीमारियों से, हर एक विपत्तियों से आपने छुड़ाया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके हाथ में समर्पण करते पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम सब लोगों को हर एक बीमारियों से, हर एक महामारी से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। परमेश्वर के दास पास शामिल है तो हम उसके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। परमेश्वर के दास साम जॉर्ज के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। नोबल पास्टर के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ आपका सेवाई करने के लिए सबको सहायता करना प्रभु जी। हमारे दिल्ली राज्य का हर एक सेवा, सुसमाचार का सेवाई प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ्य के साथ करने के लिए सबको सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे हर एक कलीसिया में जल्दी से जल्दी आराधना होने के लिए आप सहायता करने प्रभु जी। लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुलने के लिए आप सहायता करने प्रभु जी। हमारे दिल्ली राज्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने लोग इस महामारी से पीड़ित है सभी के प्रभु जी आप छुटकारा और चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ ने इसके लिए, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। हर महामारी से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे लिए दिन रात बाहर काम करने वाला पुलिस वालों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु जी इस महामारी से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हर एक मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे CM के लिए, हर एक MLAs के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अधिकार करने के लिए प्रभु जी आप सामर्थ्य और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज रात कल होने वाला हर एक सेवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक सेवाई के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। अच्छा प्रेस समर्पित करने के लिए आपका दास लोग आप सहायता करने प्रभु जी। भजन संगीता का सेवाई करने के लिए प्रभु परमेश्वर के दास को आप सहायता करने प्रभु जी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य के साथ भजन की सेवाई करने के लिए आपका दास को सहायता करने प्रभु जी। आपका नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता करने। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा आपको ही देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में एक और बार आने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जिंदगी में आए हुए कमी कटियों को क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के लिए खून से हमें शुद्ध करना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा हालेलुया देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करने वाले हर एक विश्व में प्रभु आपने प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भारत, हमारा पूरा दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन दिनों में हमारा देश, हमारा पूरा दुनिया कोविड-19 से हालेलुया पीड़ित है प्रभु जी। जल्दी से जल्दी हमारा देश को हालेलुया प्रभु चंगाई देकर हमें सहायता करना प्रभु। अपने पवित्र लोग हालेलुया इधर उधर बैठ के प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु इन दिनों में आपका हालेलुया द्वितीय आगमन बहुत निकट है प्रभु। हमें हालेलुया तैयार होने के लिए, बहुत लोगों को तैयारी करने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया नाम ऊंचा होने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। हमारा IPC दिल्ली स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक पासमानों उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी गण के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा हालेलुया दिल्ली स्टेट का हालेलुया सेक्रेटरी के लिए, हाले प्रेसिडेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक काउंसिल मेंबरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर के जोई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको परिवारों को भी आप आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया। हर एक हालेलुया विश्वासी गण को, हर एक लोगों को आपने संभाल कर सुरक्षित रखना प्रभु। अभी तक हमें सुरक्षित रखा। हरे प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा प्राण की रक्षा है प्रभु। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर और भी हमें रक्षा पाने के लिए और लोगों को रक्षा पाने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। इन दिनों में हालेलुया हमारा कई भाई बहन हालेलुया प्रभु हॉस्पिटल में काम करते हैं प्रभु, उनको सबको संभालना प्रभु जी। हालेलुया। इनके किसी को भी इन्फेक्शन होने नहीं देना प्रभु जी। विशेष तौर से हालेलुया हमारा रोहिणी सेक्टर 17 में एक परिवार हालेलुया इस बीमारी से पीड़ित है प्रभु। हालेलुया जल्दी से जल्दी प्रभु उस परिवार को हालेलुया चंगाई देकर सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा दिल्ली
स्टेट का किसी भी भाई बहनों को हालेलुया और हालेलुया इस रोग से पीड़ित होने के लिए नहीं देना प्रभु, संभाल कर रखना प्रभु जी। हालेलुया, हर सबको आपने अभी तक सुरक्षित रखा, संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार हालेलुया हमें सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हर एक कष्ट के समय प्रभु आपका नाम हालेलुया हमारा शरणागत था प्रभु। अभी भी हालेलुया प्रभु हम आपका नाम में प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हमारा प्रार्थना में उत्तर देना प्रभु जी। प्रभु हालेलुया इन दिनों में हालेलुया जैसे हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाए, हमारा प्रार्थनालय में आराधना शुरू होने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। बहुत लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए सहायता करना प्रभु। हमारा हालेलुया मिनिस्ट्री करने वाला हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु का नाम है और भी हालेलुया प्रभु मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, हालेलुया मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया हमारा हालेलुया हर एक बात आपके हाथों में देते हुए हमारे लिए जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह का नाम है, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബമായി അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാം. ബ്രദർ ടോമി വർഗീസ് ഈ സമയം നമ്മോടൊത്തുണ്ട് തന്റെ അനുഭവം പറയുവാൻ. IPC ഷാലോം ഗോതനഗർ ചർച്ചിന്റെ ആരംഭകാലം മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. ഡൽഹി സ്റ്റേഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അന്നു മുതൽ താൻ നിൽക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതിനായി പ്രിയ ടോമി വർഗീസിനെ ഞാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നു. IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിൻ സാന്നിധ്യം എന്ന ഓൺലൈൻ പ്രയർ മീറ്റിംഗിൽ കർത്തദാസന്മാരോടൊന്നിച്ച്, ദൈവമക്കളോടൊന്നിച്ച്, ഓൺലൈനിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊന്നിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ആലയങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന, ആരാധന, ദൈവവചന ഘോഷണങ്ങളെല്ലാം തക്കതായ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനായി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർക്കും ദൈവജനങ്ങൾക്കും ഇടയാവുന്നതിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലോക്കൽ സഭയായ IPC ഷാലോം ഗവർണറിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ. 1986 കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ K. ജോയ് അവർകളാൽ ഫാദർ അഗ്നസ് സ്കൂളിൽ ഒരു ആരാധന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് IPC ഷാലോം ഗവർണർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പല ദൈവമക്കൾ അവിടെ കടന്നു വരുവാനും പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവദാസന്മാരാക്കി, ദൈവ വയലിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരാക്കി ആ ചർച്ചിൽ നിന്നും വരുവാൻ ഇടയായി. പലരും വിദേശത്തും ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിലും പല ദേവദാസന്മാർ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല, സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുത്രയ സംഘടനയായ PAPA, സഹോദരി സമാജം, സൺഡേ സ്കൂൾ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം IPC ഷാലോം ഗവർണറിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും ദൈവം ഇടനന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് അതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ആയിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും അതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളയുവാനല്ല, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽപ്പാനുള്ള കൃപ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ ജയത്തിനും ധനമോ സൗന്ദര്യമോ ആരോഗ്യമോ മാത്രമല്ല ആവശ്യം, പിന്നെയോ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ മനസ്സിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവവചന ഘോഷണവും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും നൽകിത്തരുന്ന ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായി ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ സാമുവൽ തോമസ്, സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പാസ്റ്റർ നോബൽ വർഗീസ്, ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതെ, ഈ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് കോവിഡിന്റെ കണക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെ, കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് നേരിടുന്നത് അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് ദൈവവചനം അഭ്യസിപ്പാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാനും ഉള്ള ഒരു കണക്കായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് ചിലർ കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ചിലർ വിദേശ രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ചിലർ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവർ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളാരും ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ അതേ ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു, യോശുവ 1:9, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക. അതെ, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഏത് ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നാലും നമ്മളോട് കൂടിയുള്ള ദൈവം അതെ വിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ നമ്മളെ വഴി നടത്താൻ സർവശക്തനാണ്. അതെ, വീണുപോകാമായിരുന്ന സമയത്ത് കരം പിടിച്ച് നാം അറിയാതെ നമ്മെ താങ്ങി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതെ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെ വിശാലമായ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർവ്വനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിവരിക്കുന്നു. ഞാൻ അടിയന്റെ സഭയെയും അടിയന്റെ കുടുംബത്തെയും അടിയനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. थैंक यू ब्रदर टॉमी वर्गीस. प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे और प्रभु के लिए गवाह बनने के लिए और भी प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपका परिवार को भी. और आगे का समय है, प्रभु का वचन सुनने का वक्त है. आज रात्रि काल प्रभु का वचन का सेवकाई करने के लिए हमारा साथ पास्टर बेन्नी के जॉन IPC नजफगढ़ का सेवा करने वाले प्रभु का दास है. उनके द्वारा आज पवित्र कलाम हम सुनेंगे. प्रार्थना पूर्व बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठे प्रभु का दास पास्टर बेन्नी के जॉन. प्रेज़ लॉर्ड. IPC दिल्ली राज्य के तमाम परमेश्वर के कादिम लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, आदेशिक आने वाला प्रवेश मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की. आज मैं आपके विश्व में पवित्र वचन के साथ, बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी ठहर जाएंगे, खुदा के वचन कभी भी ना ठहरेंगे. ना बदलने वाला खुदा के वचन के साथ आपके विश्व में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सुंदर अवसर प्रदान किया. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. भजन सीधे 119 का 71 आयत में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. पिछले 2 महीने से हम सभी लोग लॉकडाउन के कारण अपने घर में बैठकर दुख सुख का अनुभव कर रहा है. आज रात को कितने लोग विश्वास करते हैं ये लॉकडाउन हमारे लिए हानि के लिए नहीं है. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूर्व योजना के आधार पर जो भी हो रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कंट्रोल में है जो भी हो रहा है. इसलिए हमें टेंशन करने के लिए जरूरत नहीं है, निराश होने के लिए जरूरत नहीं है. लूका सुसमाचार 14 दिया इसका 26 आयत में हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हम यीशु से प्यार करना है. माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, पति पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, अपने प्राण से बढ़कर यीशु से प्यार करने के लिए प्रभु चाहता है. ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा, सब वस्तुओं से बढ़कर सबसे ज्यादा हम यीशु से प्यार करें. इन दिनों में आपके जीवन में आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक क्षेत्रों में उन्नति होने पाई. इन दिनों में एक नई दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करें. एक नई दर्शन आप देखने पाए. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुना है. एक तेजो में सब गाय प्रभु ने हमें रूप और प्रभु ने सौंपा है.
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक प्रभु यीशु मसीह के नाम गूंजना है। अंतिम दिनों में प्रभु ने हमें चुन लिया है, इसलिए हम टेंशन करने के लिए जरूरत नहीं है, हमें निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कंट्रोल में है। आज रात को कितना विश्वास करते हैं? इसलिए बाइबल कहती है मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही उत्पन्न हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज मैं आपके बीच में विजयदायी जीवन बिताने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, विजयदायी जीवन बिताने के लिए हमें क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, 6 महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं। विजयदायी जीवन बिताने के लिए सबसे पहले स्वर्ग से जन्म लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिर से नई जन्मे तो स्वर्ग राज में पहुंच नहीं सकता। एक मनुष्य के जीवन में 2 जन्म अनिवार्य है, एक शारीरिक जन्म, दूसरी आत्मिक जन्म। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 5वीं अध्याय इसके 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो यदि कोई मसीह में आ गया वह एक नई सृष्टि, पुराना बात बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, देखो सब कुछ नया हो गया। हमें से कितने लोग कह सकता है जब से यीशु में आया मेरे जीवन बदल गया है, मेरे बोली में परिवर्तन आ गया है, मेरे सोच में परिवर्तन आ गया है। नया सृष्टि बन गया तो आपका बोली में परिवर्तन होंगे, आपका सोच में परिवर्तन होंगे, आपका मन में परिवर्तन होंगे, आपका दिल में परिवर्तन होंगे, आपके क्रियाओं में परिवर्तन होंगे। मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहेंगे, आपस में घमंड नहीं करेंगे, प्रभु के अधीन में रहेंगे। पागल यूहन्ना के पत्र में कई बातें नया जन्म पाने वालों के चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले नया जन्म पाने वालों का पहला चिन्ह उसमें लिखा हुआ है 3 अध्याय में, वो बार बार पाप नहीं करता है। 4 अध्याय में लिखा हुआ है नया जन्म पाने वालों अगला चिन्ह आपस में प्रेम करेंगे, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम बुराई गिनता नहीं है। वो अगापे प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, वो अगापे प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए। पहले यूहन्ना 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नया जन्म पाने वालों का अगले चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है, वो पाप नहीं करेगा, अपने आप को संभालेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, विजयदायी जीवन बिताने के लिए स्वर्ग से नया जन्म प्राप्त करना, विजयदायी जीवन बिताने के लिए दूसरी बात स्वर्ग से सामर्थ्य पाना है। लोकार्य सुसमाचार 24 अध्याय इसका 49 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम जब तक ऊपर की शक्ति ना पाओ तब तक तुम इसी नहर में ठहरे रहो। हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु से 3रे दिन जिंदा हो गया। जिंदा होने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, चेलों को दिखाई देते रहा। ये 40 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को 2 महत्वपूर्ण बात सिखाया। सबसे पहले परमेश्वर के राज के बारे में बताया, दूसरी पवित्र आत्मा के बारे में बताया, पवित्र आत्मा का जो वायदा प्राप्त करने के बारे में बताया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक ऊपर की शक्ति ना पाओ तब तक तुम इसी नहर में टगरे रहो। प्रभु यीशु मसीह 40वां दिन स्वर्ग उठा लिया गया। 10 दिन तक पिंदिकुस के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया करके प्रेरणों का 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 6 लोगों को 10 दिन तक इंतजार करना पड़ा।
इस लॉकडाउन में पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के लिए हम कितने दिन प्रार्थना किया है। नया नियम में 10 तरह की सामर्थ के बारे में उल्लेखन किया हुआ है। सबसे पहले प्रेरितों का एक अध्याय इसका 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुम सामर्थ पाओगे। 4 अध्याय प्रेरितों का 4 अध्याय 33 आयत में हम पढ़ते हैं, सामर्थ बड़ी सामर्थ में बदल गया, पावर बिकेम ग्रेट पावर। प्रेरितों का 19 अध्याय 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, असाधारण सामर्थ। सामर्थ, बड़ी सामर्थ, तीसरी असाधारण सामर्थ। रोमन के पत्र 1 अध्याय इसके 20वां आयत में हम पढ़ते हैं, इटर्नल पावर, सनातन सामर्थ। रोमन के पत्र 4 अध्याय 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मरे हुओं को जिलाने वाला, जो बातें है ही नहीं नाम लेकर पुकारने वाला सामर्थ। रोमन के पत्र 8वीं अध्याय में, फिलिपियों के पत्र 30 अध्याय में मृत्युंजय के बारे में लिखा हुआ है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय 7वीं आयत में लिखा हुआ है, ये सामर्थ असीम सामर्थ है, मिट्टी के बर्तन में प्रभु ने रखा है। एफेसियों के पत्र 1 अध्याय इसको 19 आयत में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में कार्य करने वाला सामर्थ जो नाप नहीं सकता। कोलोसियों के पत्र में 9वीं बार कोलोसियों के पत्र में लिखा हुआ है, ग्लोरियस पावर। दूसरा पत्रस 1 अध्याय में लिखा हुआ है, डिवाइन पावर, ईश्वरीय सामर्थ। नया नियम में 10 तरह की सामर्थ के बारे में उल्लेखन किया हुआ है। प्रभु हमसे चाहता है ये सारी सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। ये सामर्थ पाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। ये सामर्थ पाने के लिए हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने अधिकार को 5 स्थानों में प्रकट किया करके सुसमाचार में हम बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकृति के ऊपर प्रभु ने अपने अधिकार प्रकट किया। दूसरी, वस्तुओं के ऊपर प्रभु ने अपने अधिकार प्रकट किया। तीसरी, बीमारियों के ऊपर प्रभु ने अपने अधिकार प्रकट किया। नंबर 4, शैतान के ऊपर अपने अधिकार प्रकट किया है। 5वीं बात है, मृत्यु के ऊपर अपने अधिकार प्रकट किया। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 12वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं किया है वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज रात को कितना विश्वास करते हैं स्वर्ग से सारी सामर्थ हमें प्राप्त करते हुए, मैं फिर से कहना चाहता हूं वो सामर्थ हमें प्राप्त करना है। बड़ी सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। असाधारण सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। सनातन सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। मृत्युंजय सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। असीम सामर्थ हमें प्राप्त करना चाहिए। ग्लोरियस पावर हमें प्राप्त करना चाहिए। ईश्वरीय सामर्थ प्राप्त करते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा हर गली में, हमारा ये दिल्ली राज्य में हर कोने कोने में यीशु ही प्रभु है करके ये सामर्थ के जरिए हमें प्रकट करना है। तीसरी बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, विजयदायी जीवन बिताने के लिए स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना। सबसे पहले स्वर्ग से जन्म लेना। दूसरी बात स्वर्ग से सामर्थ पाना है। तीसरी बात स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना है।
पगला यूना दूसरा अध्याय 20वां आयत और 27 आयत में स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करने से क्या फायदा है हम पढ़ते हैं। पगला यूना दूसरा अध्याय 20 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र दास से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27 आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब कुछ सिखाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त किया है तो आपके घर के अंदर जो जुआ है, शैतान का चालाकी आप तोड़ सकते हैं। आपकी चर्च में जो भी जुआ है अभिषेक के द्वारा आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं। यशायाह नबी के 10 अध्याय 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। दिल्ली राष्ट्र की जुआ को, भारतवर्ष की जुआ को स्वर्ग से अभिषेक के द्वारा हम तोड़ सकते हैं। प्रभु हमसे चाहता है स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करें। विजयदायी जीवन बिताने के लिए अगला बात कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ है। 3 अध्याय अगला आयत में हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय बातों पर खोजना है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय बातों को खोजना है। छठवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, विजयदायी जीवन बिताने के लिए स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करना है। याकूब के पत्र 3 अध्याय 13 से लेकर 18 पद तक संसार के ज्ञान के बारे में, स्वर्गीय ज्ञान के बारे में याकूब ने स्पष्ट रूप से लिखा है। 13वीं आयत में 3 का 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? यदि आप समझदार है, यदि आप ज्ञानवान है, याकूब कह रहा है अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करके दिखाइए। 3 का 14 से लेकर 16 पद तक इस संसार के ज्ञान के चिन्ह के बारे में हम पढ़ते हैं। 14 से लेकर 16 पद तक 7 चिन्ह, ये दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन में मिलने वाला 7 चिन्ह। नंबर 1 कड़वी डाह, नंबर 2 विरोध रखने वाला स्वभाव, तीसरी घमंड होने वाला स्वभाव, नंबर 4 झूठ बोलना, 5वीं बात है डाह करना, और आगे लिखा हुआ है बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होते हैं। मेरे प्रियो, ये ज्ञान के बारे में 15वीं आयत में लिखा हुआ है, ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वह ज्ञान सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं ऊपर के जो ज्ञान के विशेष गुण क्या क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले ऊपर से जो ज्ञान यदि आप प्राप्त किया तो पवित्र जीवन बिताता है। आपकी संगति पवित्र लोगों के साथ होंगे। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय इसके 33 आयत में हम पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऊपर से ज्ञान प्राप्त किया तो आपका दोस्त लोग भी पवित्र होंगे। दूसरी,
मिलनसार होंगे, कोमल होंगे, मृदुभाव होंगे, दया होंगे, अच्छे भलों से लदा हुआ होंगे, पक्षपात रहित होंगे, खपट रहित होंगे, मेल मिलाप वाला होंगे। 9 महत्वपूर्ण विशेष गुण स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऊपर से ज्ञान प्राप्ति किया तो आपका जीवन बदल जाएंगे, आपका सोच बदल जाएंगे। यीशु के समान आप प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान आप क्षमा करेंगे। प्रेम सब बातें सहे लेते हैं, प्रेम बुराई करता नहीं है। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में, आसमान और जमीन के बीच में लटका हुआ प्रभु ने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, ये लोग क्या कर रहा है नहीं जानते, इन्हें क्षमा कीजिए। मेरा सवाल, जान से या अनजान से कीला ठोका? हाथों में पैरों में जानबूझकर कीला ठोकने के बावजूद भी प्रभु ने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, ये लोग क्या कर रहा है नहीं जानते, इन्हें क्षमा कीजिए। ये स्वर्ग के ज्ञान की खासियत। संसार के ज्ञान आपको क्षमा करने के लिए नहीं सिखाता है। बाइबल के परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए सिखाता है, पवित्र जीवन बिताने के लिए सिखाता है, यीशु के समान क्षमा करने के लिए सिखाता है। इसलिए स्वर्गीय ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए। यीशु के समान प्रेम करना चाहिए, यीशु के समान क्षमा करना चाहिए, यीशु के समान आज्ञा पालन करना चाहिए, यीशु के समान पवित्र जीवन बिताना चाहिए, यीशु के समान प्रार्थना करना चाहिए और यीशु के समान चिन्ह और चमत्कार हम कर सके। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग से नया जन्म प्राप्त किया है तो स्वर्ग से सामर्थ पाना है, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना है, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है। आखिरी बात हमने सुना है, स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान इस दुनिया में इसलिए आया है, हम प्रतिदिन यीशु के समान होने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम आपके लिए दुआ करते, हमारे लिए दुआ करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। കർത്താവ് തന്റെയും കുടുംബത്തെയും തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെയും അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ വേല ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന് നാം ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുവാനായി ബ്രദർ എബി മേമന ടീം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരനിൽ കൂടെ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ശാമുവൽ തോമസിന്റെ മകനാണ് എബി മേമന. അബുദാബിയിൽ താൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. തന്നോട് ചേർന്ന് ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാരണത്താൽ നമ്മൾ ചിലർ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു വെളിപ്പാടാണ്. നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവിടുവാൻ സമയം കിട്ടാത്ത കുറേ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന്
വചനം പഠിക്കുവാൻ ചെലവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് പറ്റിയൊരു സമയം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും താഴ്ന്നിരിക്കുവാനും വചനം പഠിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മളെ തന്നെ വലിയൊരു വിളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ അപ്പോസ്തലനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന ശിഷ്യൻ. ഈ സമയം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനും ആ മാർഗിലെ ചൂട് അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരുക്കുമാറാകട്ടെ, ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പഴയ ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിയുവിൻ. ആമേൻ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിയുവിൻ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ. കൃപമേൽ കൃപയാർന്നിടുവാൻ നമ്മൾ പരമപാദം ചേർന്നിടുവാൻ. കൃപമേൽ കൃപയാർന്നിടുവാൻ നമ്മൾ പരമപാദം ചേർന്നിടുവാൻ. ധരയിൽ നടന്ന തൻ ചരണം നിങ്ങൾ കരുളും ശാശ്വത ശരണം. ധരയിൽ നടന്ന തൻ ചരണം നിങ്ങൾ കരുളും ശാശ്വത ശരണം. അല്ലും പകലും മുൻപിൽ നിൽപ്പവൻ കൃപയായി. അല്ലും പകലും മുൻപിൽ നിൽപ്പവൻ കൃപയായി. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ. ചേർന്ന് പാടാമോ? വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ. സ്നേഹിതരേ വരും വെടിഞ്ഞാൽ അത് യേശുവിനോടു നീ പറഞ്ഞ. സ്നേഹിതരേ വരും വെടിഞ്ഞാൽ അത് യേശുവിനോടു നീ പറഞ്ഞ. സ്നേഹിതരെല്ലാ കുരിശിൽ പെട്ട പാടുകളേഴും തൻ കരത്താൽ. സ്നേഹിതരെല്ലാ കുരിശിൽ പെട്ട പാടുകളേഴും തൻ കരത്താൽ. ഓ നന്നായി നടത്തും വീട്ടിൽ ചേരും വരെയും. നന്നായി നടത്തും വീട്ടിൽ ചേരും വരെയും. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ. വരുവിൻ വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിവിൻ.
നല്ല സ്നേഹിതനായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാനും അറിയുവാനും ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ജയിച്ച ഒരു കർത്താവാണ്. അവൻ കർത്താവിനെ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ആ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നമ്മളെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർത്തത്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരോട് അവർക്കറിയിക്കാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കുമാറാകണമേ. ഇതല്ലേ ആ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം, ഇതല്ലേ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും. നമ്മള് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ ജയാളി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയാളികളാണ്. നമ്മുടെ ശാപത്തെയും രോഗത്തെയും എല്ലാം ആ ക്രൂശന്മേൽ കർത്താവ് വഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പാടുന്നത്, യേശു ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാമോ? करें यीशु की जो क्रूस पर जयवंत है, स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। तारीफ करें यीशु की जो क्रूस पर जयवंत है, स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करे यीशु की, वो ही है मुक्ति दाता। स्वीकार करें यीशु को, प्रभुओं का प्रभु है वो। विश्वास करें यीशु की, वो ही है मुक्ति दाता। स्वीकार करें यीशु को, प्रभुओं का प्रभु है वो। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करें आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करें आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। प्यार करें यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करें यीशु को, कभी न बदले वाला। प्यार करें यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करें यीशु को, वो कभी न बदले वाला। ओ आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करें आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करें आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। तारीफ करें यीशु की, जो क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। तारीफ करें यीशु की, जो क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। ओ आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम।
करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। हालेलुया। ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ഉയരവും വലിപ്പവും നമ്മളൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചാലുള്ളൂ. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മള് കർത്താവിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുന്ന ആ ഓട്ടം, നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയങ്ങൾ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം കർത്താവിന് നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കർത്താവ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. കർത്താവ് ആ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനാണ്. ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, घर बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उड़ाता है। जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
അയ്യോ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ. ഇത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്നേഹമാണപ്പാ. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ നീ സഹായിക്കുവാനപ്പാ. ഓരോ ദിവസവും ഒരു പടി അപ്പന്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് വരുവാൻ അപ്പാ അങ്ങ് ഇടയെടുത്തുവാനാണ്. വീണ്ടും കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ അല്പനേരം കൂടി അപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പാ നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാണ് കർത്താവേ. അത് കേട്ട് വീണ്ടും അപ്പന്റെ നാമത്തിനോട് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുവാണ് കർത്താവേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് കേൾക്കുവാനാകണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബ്രദർ എബി മേമിനോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ കർത്താവ് അധികമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരുവചനം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. വീണ്ടും തിരുവചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിപ്പാൻ IPC റായ്ബറേലിയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ KM ജോയ് ഈ രാത്രി തിരുവചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ KM ജോയ്. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मेरे जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। IBC दिल्ली स्टेट पब्लिकेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम सबके जीवन में परमेश्वर ने सहायता किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ IPC दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट पास्टर शामुएल एम थॉमस, वाइस प्रेसिडेंट पास्टर नोबल वर्गीस, सेक्रेटरी पास्टर शाम जॉर्ज और ट्रेजरर और अन्य डिस्ट्रिक्ट पास्टर सभी आदरणीय पासवानों को मेरा जय मसीह की और मैं सभी को इस समय धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे परमेश्वर के वचन से सेवादारी करने के लिए आपने बहुमूल्य अवसर दिया। उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आज की वचन की सेवादारी के लिए मैं एक आयत को पढ़ना चाहता हूं। विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 32 पद। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज के ये सुंदर समय के लिए और इस ऑनलाइन आराधना मीटिंग के लिए जो आपने हमें दिया और आपने हम सबको आपकी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। ये बहुमूल्य वचन जो आपने हमें आज दिया है प्रभु, इस वचनों के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए और सुनने वाला सभी के जीवन में आज का ये वचन उनके लिए आशीष की कारण होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। विलाप के गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 32 पदों को हमने यहाँ पढ़ा है। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। परमेश्वर के वचन में विलाप की पुस्तक को लिखने वाला परमेश्वर को लोगों को वचनों के द्वारा बताता है, चाहे हमारा परमेश्वर हमें दुख भी देता हो तो भी वो अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो हम पर दया भी करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें दुख देकर हालेलुया छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो करुणा की बहुतायत के कारण हम पर दया कर हमारे जीवन में आने वाला वो दुख की परिस्थिति से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर के लोग, आमीन, परमेश्वर के लोग जो विश्वासी लोग सोचता है विश्वास में आने के बाद हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें ये बात नहीं कहता है विश्वास में आने के बाद, मन बिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आमीन, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़िए, कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से भजनीय बताता है मसीही लोगों के जीवन में सताव आएगा। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 12 पद जब हम पढ़ते हैं वहां हम देख सकता है जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताया जाएगा। हालेलुया। तीमुथियुस, हालेलुया, परमेश्वर के दास, आमीन भाई, परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सबके जीवन में सताव आएगा, वो सबके जीवन में संकट आएगा, वो सबके जीवन में परेशानी आएगा। मसीह की लोग विश्वास में आने के बाद इन सारे परेशानियों से आमीन बच जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं पढ़ाता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। योग के पुस्तक में वो आमीन, योग के पुस्तक 5 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, आप पढ़िए 5 अध्याय के आमीन 6वें पद में आमीन वहां लिखा है क्योंकि विपत्ति दूर से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ जाती है वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। आमीन। योग के पुस्तक में लिखा है जैसे चिंगारी ऊपर से ऊपर की ओर उड़ती जाती है वैसे मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में हालेलुया सताव है। आमीन। विश्वास के जीवन में दुख और तकलीफ आएगा जब हम आप विश्वास की नई आंख से आमीन नई आंख को खींचते हुए जब आगे बढ़ेगा, आंधी और तूफान आपके विश्वास के जीवन में आ सकता है, विभिन्न प्रकार की परेशानी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आमीन हमारा परमेश्वर की करुणा की बहुतायत से वो हम पर दया भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय हालेलुया बहनों, मेरे प्रिय हालेलुया आमीन परमेश्वर के दास और दासियों, ये सारे परेशानियां, ये सारे संकट, ये सारे प्रतिकूल है जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे लिए भलाई के लिए आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियों की पत्री आमीन 8 अध्याय उसकी 28वीं पद में लिखा है आमीन परमेश्वर के हालेलुया योजना के अनुसार बुलाए हुए लोगों के जीवन में हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के जीवन में, परमेश्वर अपने योजना के तहत बुलाए हुए लोगों के जीवन में है आमीन हर एक बात है, आमीन हर एक वो समस्या, हर एक वो परेशानियां, हर एक वो दुख जो मेरे और आपके जीवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे बातें मिलकर मेरे और आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब संकट के समय में है, जब परेशानी के समय में, हो सकता है ये बात समझना हमारे लिए असंभव है, लेकिन 100 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 19वें हालेलुया वचन संहिता का 71 आमीन वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वह आमीन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के हालेलुया दास हालेलुया दाऊद इस प्रकार कहता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिसमें तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे जीवन में जो दुख आया है वो मेरे लिए भलाई के लिए हुआ है। आमीन। दाऊद कहता है उस दुख के कारण, उस तकलीफ के कारण परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए दाऊद का जीवन में वो दुख सहायता किया। कई बार आमीन हमारे जीवन में भी बहुत सारे बातें, परेशानी आता है, समस्या आता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आशीष को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे जीवन में आने वाला तकलीफ हमारी मदद करता है। हालेलुया। उसका आमीन 67 में आमीन कहता है, 67 पद में, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भड़क गया था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूं। आमीन। दाऊद कहता है मेरे जीवन में दुख आने से पहले मैं परमेश्वर के वचन से भटक गया था। हालेलुया। भटक गया था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से दूर चले गया था, लेकिन अब जो दुख मेरे जीवन में आया उससे मैं तेरे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हालेलुया दुख आने से पहले मैं परमेश्वर से दूर चले गया, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञा से मैं भटक गया था, लेकिन अब जो दुख मेरे जीवन में आया मुझे सही रास्ता पे लेकर आया। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहाँ हम लोगों ने विलाप गीत के पुस्तक में पढ़ा है, हालेलुया। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है। कोविड-19 जैसे विपरीत परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। हालेलुया। चारों तरफ तकलीफ, क्लेश के अलावा हमारे जीवन में हालेलुया कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन बीच में भी परमेश्वर का वचन हमें प्रतिज्ञा करता है, हमारे दुख देने वाला परमेश्वर, हमें तकलीफ देने वाला परमेश्वर, जब परमेश्वर के लोग नम्र होकर, धीर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर परमेश्वर के आमीन हालेलुया परमेश्वर के पास आने से वो अपनी करुणा की बहुत आयस के कारण वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में देखिए बहुत सारी परेशानी आया, अभी अय्यूब के जीवन में बहुत सारे संकट आया, अब अय्यूब के जीवन में हालेलुया सब कुछ उसका प्रतिकूल हुआ। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चले गया, उनके सारे धन और हालेलुया संपत्ति खत्म हो गया, उनकी सारे आमीन बच्चे हालेलुया मर मिट गया। सब कुछ उसकी प्रतिकूल होने के बाद भी वो परमेश्वर पर अपने विश्वास को कायम रखा, वो परमेश्वर को हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया जीवित रखा। वो आमीन परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब एक शब्द के द्वारा भी परमेश्वर के विरुद्ध में भाव नहीं किया। आमीन। कई तकलीफों के बीच में आमीन जब उनके जीवन में परेशानी आया वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में मजबूत करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, अय्यूब कहता है चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। हालेलुया। चाहे वो मुझे आग की भट्टी में डाले तो मैं सोना के समान बाहर निकल आऊंगा। आमीन। हालेलुया। 19 अध्याय इसके 25वीं पद में अय्यूब कहता है हालेलुया, हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब 19 का 25, मुझे तो निश्चय है
कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी काल के इस प्रकार नष्ट होने जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। अय्यूब का जीवन का आमीन उस विश्वास को देखिए, अय्यूब के जीवन के आमीन उस दृढ़ता को देखिए, जो परमेश्वर का ऊपर उसकी भरोसों को देखिए। इन सारे संकट के बीच में भी आमीन उस परमेश्वर की दया अय्यूब के ऊपर रहा। इसलिए अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं हालेलुया अपनी आंखों से मेरे छुड़ाने वालों को देखूंगा। दुख के कारण, संकट के कारण, क्लेश के कारण चाहे मेरे शरीर ऐसे नष्ट भी हो जाए, मैं महिमामय शरीर में होकर अपना परमेश्वर होवा को देखूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा, दूसरा नहीं। हालेलुया। दूसरा के आंखों से नहीं। योग के जीवन में वो निश्चय था, योग के जीवन में परमेश्वर का प्रति वो भरोसा था। चाहे मेरा परमेश्वर मेरे सामने मुझे संकट भी दे तो भी वो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 23वीं वचन संहिता आमेन के वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए घाटी में होकर जाऊं तो भी आमीन कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि ये होवा परमेश्वर तू मेरे साथ है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चाहे अंधकार की घोर अंधकार के घाटी में भी हो, चाहे अग्नि में होकर जाए, हालेलुया, चाहे समुद्र में होकर जाए तो भी हमें छुड़ाने वाला, आमीन, हमें बचाने वाला हालेलुया हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। मेरे प्रिया हालेलुया आमीन श्रोता हो, मैं हाल से परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे सुनने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति में भी आमीन हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमारी अय्यूब के समान आमीन दृढ़ता के साथ हम कहने पाए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें छुड़ाकर हालेलुया सारे परिस्थितियों को बदलकर हालेलुया आने वाले दिनों में हम इकट्ठा होकर एक साथ होकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला वो समय आदि के दूर नहीं है, वो बहुत ही निकट है। ये विश्वास के साथ, ये प्रार्थना के साथ हम हालेलुया आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी वो मुझे चिल्लाएगा, वो मुझे हालेलुया छुड़ाएगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इतना समय मुझे दिया हुआ। आमीन। हालेलुया परमेश्वर के दास लोगों को आमीन धन्यवाद देते हुए मेरे वचन से मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। പാസ്റ്റർ KM ജോയിയോടുള്ള നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അധികമായി കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ. ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും 7 മണി മുതൽ തിരുസാന്നിധ്യം എന്നുള്ള ഈ ആരാധന സഭയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനും ഇടയായല്ലോ. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ആരാധന കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. വിശേഷിച്ച് അതിന് ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ബ്ലസ്സിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സാംബി മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ വത്സല്യ സഹോദരനാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ വളരെ പ്രയത്നിക്കുകയും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ആ യുവ സഹോദരനെ കർത്താവ് ധാരാളം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തന്റെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ അധികമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. IPC ഷാലോം കോതനഗർ ചർച്ചിന്റെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ് സാംബി മാത്യു.
അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ അഡോണ മീഡിയയോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന നന്ദിയും ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ആ മീഡിയയിൽ കൂടാണല്ലോ ഈ ആരാധന ഇങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ധാരാളം സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിനും കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകി തരുമാറാകട്ടെ. ഇപ്രകാരം എനിക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ശാമുവേൽ തോമസിനോടും എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ എല്ലാ ബാക്കി ദൈവദാസന്മാരോടും എന്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയെ ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും പിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. IPC ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ശാമുവേൽ തോമസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. കർത്താവ് ഇവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ, ആരാധനയുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ദാനമായി തന്നല്ലോ. വിവിധ ദേശങ്ങൾ, വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ആരാധനയിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിച്ചതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കർത്താവ് ശക്തമായി വീണ്ടും കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടുപാടുവാൻ, ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. കർത്താവിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ദൈവജനമേ, നമ്മൾക്ക് തുടർന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അളവോളം ചെയ്യാം. തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും സഹകരിപ്പാനും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ മക്കളാവുന്ന അടിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭവനങ്ങളിലും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കണ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കൂടെ വലിയവനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. 2 or 3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് അവരുടെ നടുവിൽ ഞാനിവിടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രികാലം രുചിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ ഈ രാത്രികാലം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് സഹായിക്കണം. സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാണ്, ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചാണ്. ദൈവകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഈ ലോകമെങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാധിയാൽ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന് വലിയ സമാധാനം, സന്തോഷം അയച്ച് കർത്താവെ അവിടുത്തെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണമേ. ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കരമനുകൂലമായതെന്ന് കർത്താവെ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്താവെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവജനങ്ങളെ കർത്താവ് കാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തുന്നു, ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള് കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള വലിയ ആ കർത്താവെ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിപ്പാൻ തക്കണം. അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം, ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചാട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നാട്ടെ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേട്ടുത്തരവുള്ളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദിനംതോറും നമ്മളെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും ഈ രാത്രികാലം ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും വരും ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ഏറ്റെടുത്ത കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും IPC ഡൽഹിയിലുള്ളതായ എല്ലാ ദൈവജനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മേഖലത്തിൽ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.